Okay, hello everyone, welcome back to classes. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss physical property of the gaseous state of matter. In the previous lecture we have discussed four physical property of the gaseous state of matter, that is indefinite shape, indefinite volume, diffusion and effusion. But today we will discuss next physical property of the gaseous state of matter, that is property number 5, that is known as pressure. That is called pressure. So the next typical property of the gaseous state of matter, that is pressure. देखिए प्रेशर होता क्या है, पहले तो ये सीखिए। प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब किसी भी एरिया पे फोर्स डालना। सपोज ये एक एरिया है, इसमें मैंने फोर्स डाला, सो दैट इज प्रेशर। तो गैसेस मॉलिक्यूल भी किसी एरिया पे जाके फोर्स डाल सकते हैं, सो इट्स मीन्स गैसेस मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट अ प्रेशर। लेकिन ऐसा क्यों है, मतलब व्हाई गैस मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट अ प्रेशर? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव होते हैं, तो उसी मोशंस के दौरान गैसेस मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड होते हैं और एंड आल्सो कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर। आपस में भी कोलाइड होते हैं एंड आल्सो कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर। सो जब गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं या वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड होते हैं, तो उस वक्त दे एक्सर्ट अ फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दैट्स व्हाई गैसेस कैन एक्सर्ट अ प्रेशर. And pressure is represented by P, and that is equal to F by A. And what will be the unit? The unit of force is Newton and area is meter square. So Newton per meter square is the unit of pressure, and that is SI unit. Why it is SI unit? क्योंकि न्यूटन जो है वो फोर्स का SI यूनिट है और एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर है। सो जब दोनों SI यूनिट आप रिपोर्ट कर दिए, सो ये भी प्रेशर का SI यूनिट कहलाएगा। और 1 Newton per meter square, that is also equal to Pascal. 1 Newton meter square को हम Pascal भी कहते हैं। So Newton per meter square is the unit of SI unit of pressure, और Pascal is also the unit of pressure. And 1 Newton meter square जो है 101,325 Pascal के बराबर होता है। Is it okay? Okay. At sea level, at 0 degree, देखिए sea level पे when temperature is 0 degree, तो गैसेस जो प्रेशर डालते हैं that is 760 torr or 760 mmHg, and such a pressure is called 1 atmospheric pressure. That is called 1 atmospheric pressure. अगर आपसे कोई पूछे what is atmospheric pressure, तो आपने कहना है कि सी लेवल पे at 0 degree गैस जो प्रेशर डालते हैं that is atmospheric pressure, that is 760 torr or 760 mmHg. Torr and millimeter mercury is also the unit of pressure. That is the SI unit of pressure, but that is non-SI unit of pressure. और रिलेशन आपको मस्ट आना चाहिए कि 1 ATM जो है वो 760 torr या 760 mmHg के बराबर होता है। 1 atmospheric pressure क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है कि सी लेवल पे एट 0 डिग्री जो गैस प्रेशर डालते हैं दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू 760 torr और 760 mmHg. So one of the typical property of the gas, they can be exert a pressure. Why they exert a pressure? Because they collide with each other and also they collide with wall of container. That's why they exert a pressure. And what is pressure? That is force per unit area. बात समझ आ रही है ना? Next very important property of the gaseous state of matter, that is called compressibility. That is called compressibility. So the question is that what is compressibility? देखिए सपोज ये गैस के मॉलिक्यूल है, अगर इस पे हम ऊपर से प्रेशर डाल दें, यानी गैस के मॉलिक्यूलों पे अगर हम इस ऊपर से प्रेशर डाल दें, सो सच अ गैस मॉलिक्यूल बिकम क्लोज टू ईच अदर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा बाय चेंज ऑफ प्रेशर,
सो द चेंज, इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो है वो इसका चेंज हो जाएगा। द चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम per unit change of pressure, per unit change of pressure is called compressibility। देखिए गैस के जो मॉलिक्यूल है वो चूंकि दूर दूर होते हैं, उनके बीच एम्प्टी स्पेस अवेलेबल होता है। सो इसी वजह से अगर हम ऊपर से प्रेशर डाल दें गैस के मॉलिक्यूलों पे, सो दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो करीब आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच एम्प्टी स्पेस है। देखिए लिक्विड या सॉलिड के मॉलिक्यूलों पे अगर हम ऊपर से प्रेशर डाल दें तो करीब नहीं आ सकते। क्यों? उनके दरम्यान डिस्टेंस ही नहीं है, एम्प्टी स्पेस ही नहीं है, तो कैसे करीब आ जाए। लेकिन गैस में एम्प्टी स्पेस है। सो अगर हम ऊपर से इस पर प्रेशर डाल दें तो इसके मॉलिक्यूल जो है वो करीब आएंगे, करीब आने से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम दैट इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी। इसी वजह से हम कहते हैं कि गैसेस जो है दे आर कंप्रेसिबल, गैस आर कंप्रेसिबल। देखिए दो तरह की गैस है, कंप्रेसिबल एंड नॉन कंप्रेसिबल गैस। नॉन कंप्रेसिबल गैस में क्या होता है, उन गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। कंप्रेसिबल में क्या होता है, हम ऊपर से प्रेशर डालते हैं और इनके जो मॉलिक्यूल दूर है वो नज़दीक आ जाते हैं, जस्ट ये होता है। तो सारी बात है, जब पहले मॉलिक्यूल दूर थे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अब जब इसके मॉलिक्यूल करीब आ गए तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो ये वॉल्यूम जो कम हुआ बाय अप्लाइंग प्रेशर दैट इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन वो क्यों कम हुआ? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान एम्प्टी स्पेस होता है। अगर एम्प्टी स्पेसेस ना होते तो आप जितना भी प्रेशर डालते उन्होंने कोई करीब नहीं आना था। सॉलिड है ना, सॉलिड, आप इस पर जितना भी प्रेशर डालें उनके मॉलिक्यूल करीब नहीं आएंगे। क्यों? उनके दरमियान डिस्टेंस ही नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है। लिक्विड आल्सो, लेकिन गैस करीब आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनके बीच एम्प्टी स्पेस है। जब आप ऊपर से प्रेशर डालेंगे तो उनके मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, करीब आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। बात समझ आ गई सबको ना? एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल दैट इज नॉन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी, देखिए गैस मॉलिक्यूल और मोबाइल। देखिए मोबिलिटी का क्या मतलब है? मोबिलिटी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिंपली ऑल कॉल ट्रांसपोर्ट। कि जो गैस की मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी पाइप के अंदर गैस मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखिए बहुत दूर एक जगह पे सपोज गैस निकलता है तो वहाँ से गैस आता है पाइप के ज़रिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि गैस में इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होने की सलाहियत है। ये जो पाइप में गैस ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ नॉन एज व्हाट, दैट इज़ नॉन एज मोबिलिटी। लेकिन सवाल ये है कि गैस के मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा मोशन किस वजह से कर सकते हैं? दैट इज ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूलों में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दे आर वेरी वीक। तो इसी वजह से गैस का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, दे आर मोबिलिटी। देखिए सपोज माई मॉलिक्यूल समझो, मुझे मॉलिक्यूल समझे, यहाँ पे एक और बंदा है उसने मुझे पकड़ लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया है, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या मैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकता हूँ? बड़ी मुश्किल से होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ जो लिया है। अगर इधर बहुत सारे बंदे आ जाए और वो मुझे घेर दे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बना दे, तो क्या मैं यहाँ से क्लासरूम से ट्रांसपोर्ट हो सकता हूँ? मुश्किल है कि मैं अपने कमरे तक ही ट्रांसपोर्ट हो जाऊँ। क्यों? सब ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाया, सब मुझे खींच, तो कैसे होता है? तो गैस का मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा डिस्टेंस पाइप में क्यों ट्रैवल कर सकता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी वीक है। तो इसी वजह से इसमें बहुत सारा डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत है, एंड दैट इज नॉन एज मोबिलिटी। बात समझ आ रही है ना सबको? एंड द लास्ट फिजिकल टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैस स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। लास्ट जो टिपिकल प्रॉपर्टी है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। पहले तो सीखते हैं डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ
कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि गैसेस जो है लो डेंसर, गैसेस जो है वो क्या है, वो लो डेंसर है। क्यों गैसेस की डेंसिटी कम है, क्यों गैसेस लो डेंसर है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल आपको बताया ना बहुत दूर दूर होते हैं और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कमज़ोर होते हैं। तो जब बहुत दूर होते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से गैस की जो डेंसिटी है वो कम होती है। यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा ऊपर ही होते हैं, क्योंकि हमेशा जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है ऊपर ही जाती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे। तो वाई गैसेस ऊपर होते हैं क्योंकि उसकी जो डेंसिटी वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जो डेंसिटी है गैसेस ऑक्सीजन्स की एट 0 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर्स पे जो गैस की डेंसिटी है वो है 0.0014 ग्राम पर cm3। गैसियस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जब गैसियस स्टेट में हो तो इसकी डेंसिटी 0.0014 है। लेकिन अगर लिक्विड ऑक्सीजन्स की आप बात करें, लिक्विड ऑक्सीजन्स एट -103 सेंटीग्रेड, तो उसकी डेंसिटी बन जाती है 1.14। और सॉलिड ऑक्सीजन्स -212 डिग्री में 1.4। देखिए ऑक्सीजन जब गैसियस स्टेट में हो 0 डिग्री तो इसकी डेंसिटी 0.0014 है। लेकिन वही ऑक्सीजन जब लिक्विड हो जाए एट -103 डिग्री पे तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है 1.14। फिर वही ऑक्सीजन जब सॉलिडिफाई हो जाए एट -212 सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे तो उसकी डेंसिटी 1.14 से भी ज़्यादा हो जाती है, 1.1 से भी ज़्यादा हो जाती है 1.4। तो यही मैं कह रहा हूँ कि गैसेस की डेंसिटी कम होती है क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम होगी। तो ये ज़रा देखिए 0.0014 इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड गैसियस स्टेट। लिक्विड में बढ़ जाता है 1.14, सॉलिड में और बढ़ जाता है 1.4 ये 4। सॉलिडिफाइड किस टेम्परेचर पे होता है, -212 डिग्री पे। लिक्विफाइड किस टेम्परेचर पे होता है, ऑक्सीजन -103 डिग्री पे ये टेम्परेचर देना पड़ेगा। और 0 डिग्री पे तो ये गैस है तो इसकी डेंसिटी कम है। तो कहने का मेरा मतलब है कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। तो गैसेस का चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसलिए उसकी डेंसिटी कम है। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट typical property of the gaseous state of matter. Thank you very much for watching this video.